Good morning, students. We are studying chapter 3 of our science, that is fiber to fabric. Today we are going to discuss about the factors that determine the quality of wool, right? What are those factors which can determine the quality of wool? Today we are going to see that how we can say that which wool is of good quality and which wool is of bad quality. What are those factors which decide the quality of wool? We are going to see that today. Okay, so the first quality of which determines the quality of wool is that diameter. Okay, students, we know that we obtain wool from the hairs of the animals, and then we process that hairs to make a fine thread of wool, right? That fine thread of wool should be very thin. Okay, the diameter of the thin of the wool should be nearly 15 micrometer, means it should be very thin. If the thread of wool is very thin, that is it is 15 micrometer, then that quality of wool is very good. And if the diameter of the thread is nearly 30 micrometer or more than that, then that quality of wool is not so good. Okay, that is a inferior quality wool. So if the diameter of the thread of wool is 15 micrometer, then it is a very good quality wool. And if the diameter of thread is 30 micrometer or more, then it is a inferior quality wool. Okay, now the next factor is length. Okay, students, yarn length varies from 6 inch to 15 inch. Longer fiber make finer wool. ओके स्टूडेंट्स, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी हमारे यान की, उतना ज़्यादा बेटर क्वालिटी का वुल हम ऑब्टेन कर पाएंगे. यूजुअली जो लेंथ होती है यान की, दैट इज़ फ्रॉम 6 इंच टू 15 इंच. ओके, and how much good the length of the yarn is, the better will be the quality of the wool. जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी बेटर क्वालिटी होगी वुल की. ओके, now the third point is color. Wool is generally creamy white in color. Students, we know that we obtain wool from the hairs of the animals, right? और जो मेनली जो एनिमल्स के हेयर होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? क्रीमी वाइट, राइट? बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके हेयर्स ब्लैक, ब्राउन और ग्रे कलर के होते हैं. तो जिन एनिमल्स के हेयर्स क्रीमी वाइट होते हैं उनसे हमको वाइट वुल मिलता है, और जिनके हेयर्स ब्लैक, ब्राउन और ग्रे होते हैं उनसे हमको ब्लैक, ब्राउन और ग्रे कलर का वुल मिलता है. सो इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन वुल इन डिफरेंट कलर्स. Now, the next is scale structure. The scale of good wool fiber overlap like shingles on a roof. Okay, so जितने कम स्केल्स होंगे वुल पे, उतना बेटर या फाइन क्वालिटी का वुल हमको मिलेगा. ओके, now the next one is crimp. It is the natural waviness in wool fiber and makes it heavier than the other textile which help it to retain heat. Okay students, crimp का मतलब generally जो wool होता है that is quite heavier than the other textile, and since it is heavier than the other textile material, so it can retain more heat and keep us more warm as compared to any other material, and that's why we use wool in the winter season. Okay, so that it can protect us from uh, the cold. Now students, till now we have studied about wool. Now the next topic that we are going to study today is
सिल्क। ओके, अभी तक हमने वूल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क इज़ strong, shiny, soft fiber produced by silkworm. Students, we get silk from an insect and the name of that insect is silkworm, right? हमको पता है कि हमको सिल्क किससे मिलता है, एक इंसेक्ट से, और उस इंसेक्ट का नाम क्या है? इंसेक्ट का नाम है सिल्कवॉर्म। इट इज़ द ओनली फाइबर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इंसेक्ट मोथ एंड इट इज़ अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर। ओके, बेसिकली जो सिल्क होता है वो हमको सिल्क वॉर्म के सलाइवा से मिलता है। ओके, एंड जो सिल्क होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ natural protein fiber, the protein that gets secreted out of the body of the insect, that is silkworm. From that protein we can make our silk fiber. Okay students, सिल्क इज़ अ गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। इंसुलेटर मतलब क्या? एनीथिंग विच रेजिस्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? हर वो चीज़ जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देती है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो सिल्क भी जो है वो हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है, इसलिए इट इज़ अ गुड इंसुलेटर। इट कीप्स अस वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर्स। स्टूडेंट्स, जो सिल्क होता है इट हैज़ पोर्स इन इट सेल्फ, एंड सिंस इट हैज़ पोर्स इन इट सेल्फ सो it can keep us warm during the winters and cool during the summers, because जो air है उसका pass out easily हो सकता है सिल्क में से, that's why. Now there are different types of silk, students. Mulberry, Muga, Tassar, Oak, Kosa. You have to learn the name of all these 5 types of silk. Depending upon the quality of the silk, the silk are of 5 types basically: Mulberry, Muga, Tassar, Oak and Kosa. Now we are going to study about the life cycle of silk moth. Students, as I have just told you that we obtain silk from the silkworm, right? और जो सिल्कवॉर्म होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले होता है एग, है ना? सबसे पहले एग होता है, उस एग में से कैटरपिलर निकलता है और वो कैटरपिलर अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। उस शील्ड को हम बोलते हैं ककून्स। और ककून्स के अंदर जब हम उन ककून्स को बॉईल करते हैं तो उनके अंदर से हमको सिल्क थ्रेड मिलने लग जाता है और उसको हम बोलते हैं पूपा। ओके, एंड देन हम जो प्रोटेक्टिव शील्ड है उसको खोलकर अंदर से सिल्क फाइबर निकाल लेते हैं एंड वी गेट सिल्क moth from there. Okay, so this is basically the life cycle of silk moth. Students, you have to read along with me all the points one by one. The female silk moth lays 300 to 400 eggs. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो 300 से 400 एग्स को ले करती है, मतलब देती है। The eggs hatch into the tiny larva or caterpillars. जब वो eggs hatch होते हैं तो उसके अंदर से कौन निकलते हैं? कैटरपिलर्स, और जिनको हम लार्वा भी बोलते हैं। They grow to the full size in 1 month by eating mulberry leaves. Students, this point you have to learn कि जो silkworm होते हैं वो केवल mulberry leaves, mulberry is a name of kind of plant, जो silkworm होते हैं वो केवल mulberry leaves खाते हैं। ओके, और वो अपने full size के हो जाते हैं केवल 1 month में ही। Caterpillars are covered with a tough covering which interferes with elongation of body during their growth. Students, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो कैटरपिलर्स होते हैं वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। ठीक है, यही चीज़ हमने लिखी है कि एक टफ कवरिंग मतलब क्या? एक प्रोटेक्टिव शील्ड वो लोग बना लेते हैं
और वो अपने आप को उसके अंदर कवर कर लेते हैं। द कैटरपिलर मेक्स अ होल इन द बॉडी कवरिंग। स्टूडेंट्स, जो कैटरपिलर्स होते हैं वो उस कवरिंग में एक होल बना लेते हैं, और द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग ऑफ द ओल्ड स्किन वाइल ग्रोइंग इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। और जब वो इस ओल्ड स्किन को कास्ट ऑफ करते हैं ग्रोथ के समय, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्टिंग। ओके, now one by one we will study the points that how we can produce silk from the silkworm. Students, by reading all these points you can better understand it ki how silk is obtained from the silkworm. Rearing of silkworm for production of silk is called as sericulture. Students, जब हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं, रियरिंग मतलब पालना, जब हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं किस लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। ओके, जब हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं टू प्रोड्यूस सिल्क फ्रॉम देम, सो इट इज कॉल्ड एज सेरीकल्चर। ओके, now there are a few steps from which we can obtain silk from the silkworms. First, the silkworm eggs are washed and kept in conditions which favor them to hatch. Okay, सबसे पहले क्या किया जाता है कि सिल्क वॉर्म के जो एग्स होते हैं उनको अच्छी तरह से वॉश किया जाता है, और फिर उनको ऐसी कंडीशंस में रखा जाता है जहाँ पे वो इजीली हैच कर पाएँ। हैच का मतलब होता है कि जो सिल्कवॉर्म एग के अंदर हैं वो इजीली नेचुरली एग को तोड़कर उसके बाहर आ सकें, राइट। जैसे कि हैंस जो एग देती हैं उसके अंदर भी जो बच्चे होते हैं वो भी कुछ समय बाद एग को तोड़ के बाहर आते हैं, राइट। तो नेचुरली जब एग को तोड़ के बच्चे बाहर आते हैं उसको बोला जाता है हैचिंग। सो हम सिल्कवॉर्म के एग्स को ऐसी कंडीशंस में रखते हैं, उनको प्रॉपर टेम्परेचर देते हैं ताकि वो इजीली हैच कर पाएँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। देन हम क्या करते हैं, आफ्टर द एग्स आर हैच्ड, अब क्या हुआ, एग्स हैच हो गए, उसके अंदर से सिल्कवॉर्म्स बाहर निकल गए। नाउ द कैटरपिलर्स, और जो सिल्कवॉर्म बाहर निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स, राइट। नाउ द कैटरपिलर्स आर फेड ऑन फ्रेशली कट मलबेरी लीव्स। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि जो सिल्कवॉर्म्स होते हैं वो केवल मलबेरी लीव्स खाते हैं, राइट। तो जो कैटरपिलर्स एग्स में से बाहर निकले हम उनको फ्रेशली कट मलबेरी लीव्स खिलाते हैं। ओके, नाउ जब वो अच्छे से खाते पीते हैं तो 20 से 25 डेज़ में जो कैटरपिलर्स होते हैं दे आर रेडी टू स्पिन ककून्स। नाउ मैंने आपको बताया था कि वो अपने आप पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड जनरेट कर लेते हैं, राइट, एंड देन दे आर कॉल्ड एज ककून्स एंड देन एनक्लोज देमसेल्स, और वो क्या करते हैं उस प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर अपने आप को कवर कर लेते हैं इन 2 और 3 डेज़। क्या हुआ, हमने एग्स को वॉश किया और उनको प्रॉपर कंडीशंस में रखा ताकि वो इजीली हैच कर पाएँ। जब वो हैचिंग हो गई और उसमें से कैटरपिलर्स बाहर निकले तो कैटरपिलर्स को हमने फ्रेशली कट मलबेरी लीव्स दी ताकि वो मलबेरी लीव्स को खाकर पूरी तरह से ग्रोथ कर लें 25 से 30 डेज़ में। अब वो क्या करते हैं, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं और उस प्रोटेक्टिव शील्ड को हम क्या बोलते हैं, ककून्स। नाउ जिसके अंदर वो जो ककून्स जो कैटरपिलर्स रहते हैं वो 2 से 3 दिन में इस पूरी शील्ड को बना लेते हैं, राइट। उसके बाद क्या होता है, नाउ हम उन ककून्स को कलेक्ट करते हैं और उनको बॉइल्ड वाटर में उनको हॉट वाटर में बॉईल किया जाता है। ओके, हमने क्या किया, ककून्स को कलेक्ट किया और उनको हॉट वाटर में बॉईल किया, या फिर हम उनको ओवन्स में भी रख सकते हैं या फिर फ्यूमिगेटेड टू किल द लार्वा इनसाइड। स्टूडेंट्स, अब हम उन ककून्स को इकट्ठा करके हॉट वाटर में बॉईल करते हैं जिससे उनके अंदर का जो लार्वा है वो मर जाए, राइट, to kill the larva inside that cocoon.
द cocoons आर प्लेस्ड इन हॉट एंड कोल्ड वाटर अल्टरनेटिवली टू लूज द फिलामेंट। और जब वो अंदर का लार्वा मर जाता है तो हम उन ककून्स को हॉट और कोल्ड वाटर में रखते हैं अल्टरनेटिवली। मतलब थोड़ी देर के लिए हॉट में रखा, फिर कोल्ड में रखा, फिर हॉट में रखा, फिर कोल्ड में रखा। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो अंदर फिलामेंट है वो इजीली लूज़ हो जाए और हमको एक फ्लेक्सिबल थ्रेड मिल पाए, फ्लेक्सिबल मोथ मिल पाए ककून के अंदर से। नाउ फिलामेंट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द ककून्स। अब हमने क्या किया? फिलामेंट्स को ककून्स में से बाहर निकाल लिया। एंड वाइंडिंग ऑफ फिलामेंट ऑन टू अ रील इज डन। उसके बाद हम फिलामेंट्स को वाइंडिंग कर देते हैं, मतलब उनको लपेट देते हैं एक रील के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग सिल्क फाइबर बाय अनवाइंडिंग cocoons एंड कन्वर्टिंग इट इनटू सिल्क yarn इज कॉल्ड एज रीलिंग। और इस पूरी प्रोसेस को मतलब हमने सिल्क निकाला, उसको ककून में से हमने अनवाइंड किया, मतलब जो सिल्क फाइबर है उसको हमने ककून में से निकाला और उसको हमने सिल्क यान में कन्वर्ट किया। ये जो हमने सारी स्टेप्स पढ़ी, इस पूरी स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रीलिंग। ओके, means we can say that the whole process of drawing silk fiber by unwinding cocoons and converting it into silk yarn is called as reeling. Okay, now the silk threads are then dyed and woven into silk fabric. अब ये जो सिल्क थ्रेड हमको ऑप्टेन होते हैं, हम उनको डाई कर देते हैं। डाई करना मतलब क्या? कलर करना। हमको जिस भी कलर का सिल्क क्लॉथ चाहिए होता है हम उसको कलर कर देते हैं और फिर हम उससे क्या बना लेते हैं? उसको वोव करके हम क्या बना लेते हैं? सिल्क फैब्रिक, राइट। और फिर हम उस सिल्क फैब्रिक से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स बना सकते हैं। जो सिल्क साड़ीज़ होती हैं, सिल्क कारपेट्स होते हैं, सिल्क बेडशीट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम उनसे इजीली बना सकते हैं, राइट। नाउ वी कैन गिव ग्रेड्स टू द सिल्क। जैसे कि हमने वुल में क्वालिटी पढ़ी है कि कौन सी क्वालिटी का वुल अच्छा होता है, कौन सी क्वालिटी का वुल बुरा होता है, वैसे ही सिल्क में कुछ ग्रेड्स होती हैं। जो अच्छा सिल्क होता है उसको अच्छी ग्रेड्स मिलती हैं, जो थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का सिल्क होता है उसको इन्फीरियर ग्रेड्स मिलती हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ रील्ड सिल्क। रील्ड सिल्क मतलब these are the unwounded fabric and form the best quality of wool. Okay students, जो ये रील्ड सिल्क होता है वो बेस्ट क्वालिटी, फाइनेस्ट क्वालिटी का सिल्क होता है। ओके, इट इज़ प्योर वाइट इन कलर। जो रील्ड सिल्क होता है वो प्योर वाइट होता है कलर में। इसका मतलब क्या? जो बेस्ट क्वालिटी का सिल्क है उसको हम क्या बोलते हैं? रील्ड सिल्क। नाउ द नेक्स्ट इज स्पन सिल्क। स्पन सिल्क मतलब क्या? इट इज़ इन्फीरियर क्वालिटी। इन्फीरियर मतलब उससे थोड़ा सा कम। तो रील्ड सिल्क से जो थोड़ा सा कम क्वालिटी का सिल्क होता है उसको हम बोलते हैं स्पन सिल्क। स्पन सिल्क लेफ्ट आफ्टर रीलिंग इज कार्डेड एंड कॉम्ड फॉर फर्दर यूज़। स्टूडेंट्स, जब हमको रीलिंग करने के बाद जो सिल्क बच जाता है हम उसको इकट्ठा करके और उसकी कॉम्बिंग करके फर्दर जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पन सिल्क। ओके, इट इज़ लाइट हनी कलर्ड। और ये वाला सिल्क जो होता है वो कैसा होता है? लाइट हनी कलर्ड का। ओके, जो प्योर सिल्क है वो प्योर वाइट, जो रील्ड सिल्क, और जो स्पन सिल्क है दैट इज़ लाइट हनी इन कलर। बिकॉज ये रील्ड सिल्क के बाद जो सिल्क बच जाता है उससे बनाया जाता है स्पन सिल्क। Now the third one is noil silk. Okay, this is the third one. Third one is noil silk. After combing and spinning, the short fibers that are left behind are called as noil silk. अब रीलिंग के बाद जो बच गया उससे हमने क्या बनाया? स्पन सिल्क। और स्पन सिल्क के बाद भी जो बच जाता है, जो थर्ड क्वालिटी होती है, उसको हम बोलते हैं नॉइल सिल्क। इट इज़ रफ टू टच, ये थोड़ा सा रफ होता है, और इट इज़ कॉल्ड एज रॉ सिल्क। इसको हम क्या बोलते हैं? रॉ सिल्क। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का सिल्क कौन सा हो गया? रील्ड सिल्क, फिर स्पन सिल्क, और जो सबसे कम अच्छा होता है, जो सबसे इन्फीरियर होता है, वो होता है नॉइल सिल्क। ओके, सो दीज आर द 3 ग्रेड्स ऑफ सिल्क।
Now, what are the factors that affect the quality of silk? Okay students, we are going to see that कि what are those factors जिनसे सिल्क की क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होती है. द फर्स्ट वन इज रियरिंग स्पेस. Too much crowd in the rearing tray results in the increase in humidity, temperature and fermentation of litter. Okay, मैंने आपको बताया कि हम उनको जब हम ककून्स को इकट्ठा करके वाटर में बॉईल करते हैं या हम ओवन में रखते हैं, तो जब हम उनको ओवन में रखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए. इसका मतलब हमको बहुत सारे ककून्स को एक साथ नहीं रखना है. हमको ककून्स को प्रॉपर स्पेस देनी है क्योंकि उनके अंदर जो लार्वा है वो ग्रो कर पाए इजीली और जो फर्मेंटेशन है वो इजीली हो पाए. ओके, इसलिए हमको कम ककून्स रखने चाहिए, ना कि ट्रे को हम पूरी तरह से भर दें. देयर शुड नॉट बी मच क्राउड इन द रियरिंग ट्रे. अगर हम डिस्टेंस रखेंगे तो जो सिल्क होगा वो कैसा होगा, बेटर क्वालिटी का होगा. नाउ द लीफ क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है. हमने क्या किया, हमने कैटरपिलर्स को मलबेरी लीव्स खिलाई, राइट. अब मलबेरी लीव्स की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि हमको कैसा सिल्क मिलेगा. लीव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्वालिटी ऑफ सिल्क. लीव्स फेड टू द वर्म आर केप्ट फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स. स्टूडेंट्स, जो मलबेरी लीव्स सिल्कवॉर्म्स को या कैटरपिलर्स को खिलाई जाती हैं, उनको किसी भी डस्ट पार्टिकल से दूर रखा जाता है और उस पर किसी भी वाटर ड्रॉपलेट्स को भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है. मतलब हमको लीव्स को प्रॉपरली बहुत केयर के साथ रखना पड़ता है. ओके, नाउ द वाटर यूज्ड इन रीलिंग. हमने क्या किया, हमने ककून्स को इकट्ठा करके उसको हॉट वाटर में बॉईल किया. इफ़ द क्वालिटी ऑफ वाटर यूज फॉर बॉइलिंग ककून्स इज़ पुअर, अगर हमने पानी अच्छा नहीं लिया है, गंदा पानी लिया है, तो जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो इन द वाटर स्टिक टू द सिल्क एंड इन्फ्लुएंस इट्स कलर्स एंड लस्टर. तो जो उस वाटर की इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, सिल्क के साथ चिपक जाएंगी और जिससे उसका कलर और उसकी लस्टर मतलब चमक, उसके कलर और उसकी चमक को अफेक्ट करेंगी. ओके, हमको pH ऑफ द वाटर हैज़ टू बी केप्ट इन कंसिडरेशन. pH मतलब स्टूडेंट्स, pH एक तरह का स्केल होता है जो हमको ये बताता है कि वाटर प्योर है या नहीं. ओके, तो हमको जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं हमको उसका pH ध्यान रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं सिल्क की क्वालिटी को. सबसे पहला तो वाटर जो है वो साफ़ होना चाहिए, राइट. मलबेरी लीव्स जो हैं वो क्लीन होनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है. और जो तीसरा है वो रियरिंग स्पेस, राइट. जो हम ककून्स हैं उन ककून्स को हमको दूर दूर रखना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ टेक्निक ऑफ स्टिफिंग. हम जिस टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं स्टिफिंग के लिए उस पर भी डिपेंड करता है कि हमको कैसी क्वालिटी का वुल मिलेगा. ककून्स हैविंग डिफरेंट साइज एंड क्वालिटीज़ नीड डिफरेंट डिग्री ऑफ टेम्परेचर फॉर स्टिफलिंग. ओके, अलग अलग क्वालिटी का सिल्क के जो अलग अलग ककून्स होते हैं उनको अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है. मतलब कुछ एग्स कम टेम्परेचर पे भी हैच कर देते हैं, कुछ एग ज़्यादा टेम्परेचर पे हैच करते हैं. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि हैचिंग कैसे होगी, राइट. और अगर हम कभी कभी एग्स को डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में रख देंगे हैच करने के लिए, तो क्या होगा, सन से जो यूवी रेज आती हैं वो एग्स को डैमेज कर देंगी. इसलिए हमको कभी भी उन एग्स को सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनको हॉट एयर कंडीशनिंग देना चाहिए ताकि वो इजीली हैच कर पाएँ. ओके, नाउ health hazards in wool industry and sericulture. Students, we can get wool and silk from the natural fiber. These are the natural fibers, right. But there are few health hazards in obtaining wool and silk.
जो जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ पे उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं. व्हाट आर दोज हेल्थ इश्यूज़ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. In wool industry, the workers who sort wool often suffer from a fatal blood disease called anthrax और sorters disease. वो एम्प्लॉयज़, वो वर्कर्स जो वुलन इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको एक ब्लड डिजीज़ हो जाती है, ठीक है. और उस ब्लड डिजीज़ का नाम क्या है? एंथ्राक्स, और उसको बोला जाता है सॉर्टर डिजीज़. क्यों होती है? एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के कारण ये डिजीज़ होती है. ओके. तो वुलन इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको एंथ्रैक्स डिजीज़ हो जाती है. ये एक ब्लड डिजीज़ है. किसके कारण होती है? एंथ्रैक्स बैक्टीरियाज के कारण. क्योंकि जो हेयर्स होते हैं एनिमल्स के, उन हेयर्स में ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, राइट. वर्कर्स इन द सिल्क इंडस्ट्री कम इन कॉन्टैक्ट विद बॉइलिंग वाटर. हमने क्या किया? ककून्स को बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर में बॉईल करते हैं हम, राइट. तो कभी कभी क्या होता है, हमको वहाँ पे टेम्परेचर चेक करना पड़ता है कि टेम्परेचर पानी का ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है. तो उस केस में जब वो चेक करते हैं तो वर्कर्स क्या हैं, कभी कभी गर्म पानी से उनको वाउंड्स लग जाते हैं, मतलब चोट लग जाती है ना. और वो जो चोट होती है उससे उनको स्किन इन्फेक्शन के भी चांसेस हो जाते हैं. तो this is also one of the health hazard to the workers who are working in the silk industries, right. Now the next one is workers who are exposed to continuous vapor for boiling cocoons and diesel for machines suffer from respiratory diseases like asthma and bronchitis. Students, sometimes we जो जब हम cocoons को boil करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा vapors निकलती हैं, right. या अगर हम उनको ओवन्स में रखते हैं या मशीन्स में रखते हैं तो उसमें जो डीजल होता है उसकी स्मेल भी हमारे शरीर में जाती है. तो उन वेपर्स के कारण या डीजल की स्मेल के कारण जो एम्प्लॉयज़ वहाँ होते हैं उनको कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं. रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ मतलब क्या? सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है, राइट. और वो डिजीज़ेज़ कौन कौन सी होती हैं? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, राइट. सो दीज आर फ्यू ऑफ द हेल्थ हज़ार्ड्स which are so common in woolen industry and sericulture. Okay students, that's all for today's class. In our next class we will study our next chapter. Okay, thank you.